Assignment going on बेटा, completed? Yes sir. अभी सर चल रहा है सर। एक डाउट पूछना है क्वेश्चन नंबर 5 में। Question number 5, okay. Give me a minute, let me open up. हाँ बेटा, बताओ क्या डाउट है? सर इसमें जो डायग्राम है उसमें इनिशियल कोर्स निकालना है, तो राइट। तो इसका जो डायग्राम बन रहा है इनिशियल कोर्स का, उसमें एक साइड तो उसमें चली जाएगी कंपोजिट कोर्स में, रमलाइन कोर्स में। तो सर वो एंगल ए कैसे निकालेंगे, ये डाउट हो रहा है। So find the initial course, final course and the distance from Vancouver to Hawaii. 4820, searing latitude of 4820. Okay. So initial course में डाउट आ रहा है बेटा? यस सर। ओके। अब बेटा आप देखो, जो आपका लिमिटिंग लैटिट्यूड है दैट इज 4820, और आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसका लैटिट्यूड भी 4820 है। सो दैट मींस बोथ ऑफ देम आर एट द सेम लैटिट्यूड, यस सर। राइट? ओके, मैं आपको एक्चुअली आज प्रेजेंटेशन में यही चीज़ बताने वाला था। सो लेट मी ओपन अप द प्रेजेंटेशन, आई विल एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपका लिमिटिंग लैटिट्यूड बिकम्स इक्वल टू द लैटिट्यूड ऑफ वन ऑफ द पोर्ट्स। दिस हैपेंड इन नंबर 1 आल्सो। हाँ उधर 1 तो हो गया सर बहुत सारे क्वेश्चंस में हुआ है, 2-3-4 क्वेश्चन में हुआ है। फाइनल लैटिट्यूड था ना, जो फाइनल था वही वाला था ना, तो फिर भी निकल जाता है। राइट। अब इसमें तो सर जो आपने सोल्यूशन भेजा था ना, उसमें भी दिया है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा सोल्यूशन, बिकॉज उसमें तो वो उसमें डायरेक्टली उन लोगों ने ये कर लिया कि जो हम लोग का वी बन रहा है वो बाहर बन रहा है एंगल लेके, तो वो कैसे बन रहा है वो समझ में नहीं आया। ओके बेटा, ओके, मैं अभी आपको ये प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। लेट्स सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो पहले वो कर लेते हैं प्रेजेंटेशन, बाद में देखेंगे। या ओके बेटा, लेट्स सी द प्रेजेंटेशन। Now, having understood a basic composite sailing problem. बोलो बेटा। सर गुड आफ्टरनून सर, एक चीज पूछा था, अगर जो लिमिटिंग लैटिट्यूड है जिसमें लैटिट्यूड सेम भी होते हैं, अगर जो प्रोसीजर बताया था वैसे भी करते हैं तो वो जीरो हो जाता है डिस्टेंस, तो वो गलत थोड़ी है। नो प्रॉब्लम बेटा, लेट्स वॉच दिस एक्सप्लेनेशन। इसके बाद कुछ भी डाउट्स होंगे वी विल कवर देम अप। ओके सर। ओके बेटा। Let's look into a typical kind of problem which sometime comes in exams related to composite sailing concept. Now, in these type of questions, the limiting latitude matches with the latitude of either the initial position or the final position.
till now in the examples, we have seen that the limiting latitude is higher than the latitude of starting position as well as the destination. But if in case the limiting latitude matches with the latitude of initial position or the final position, how do we approach this type of question? Let's make a diagram here and try to understand first what the question is and then how do we solve it. Let's assume the vessel's initial position is here. We mark this position as A. This is the initial position of the ship. Let's assume that the final position of the ship is at this particular location. We mark this position as B, and this is our destination or final position. Let's now complete the plot. Let's put in the pole also and try to make the composite sailing diagram. Now in these problems, the limiting latitude matches with latitude of one of the ports. So in this particular case, B being at a higher latitude, we are in the northern hemisphere. B being at a higher latitude, the limiting latitude exactly matches with the latitude of B. So this tells us that if we plot or draw the limiting latitude, it will be passing from our final position B, and that's what you can see in the diagram now. Let's now plot the pole. You can see the pole P plotted in the diagram. Now from the pole, let's draw the meridian of A. So PA represents the meridian of A, one of the sides of our diagram. Let's plot the meridian of our final position also now. So PB is the meridian of B. Now in composite sailing problems, the first course is found by making a great circle track. The great circle track should be such that it passes from our initial position, in this case A, and it has its vertex on the limiting latitude. So we will first plot this great circle track exactly like this. It will pass from position A, that is our initial position, and the track has its vertex on the limiting latitude. So you can see the first great circle track in the plot now. As you can see, it passes from the initial position and it has its vertex on the limiting latitude. So that's the limiting latitude is the highest latitude where this great circle track would go. Now the point where it meets the limiting latitude is the vertex of this particular track, and we mark off this vertex as V1. As usual, we mark off this vertex as V1. Now once we reach at this vertex V1, we then proceed on our second leg of the passage. The second leg of the passage is a parallel track. We move along the parallel of the latitude on our limiting latitude itself. Now when you move along the parallel of the latitude, or which will be the limiting latitude in this case, you will see the port B, final position, being at the limiting latitude. When you move on this parallel track, you will arrive at your destination. So you see, in this case, we do not have to follow the third leg of our passage. That is the great circle track from limiting latitude going up to position B. That is not required at all, because when we are following our second leg of the passage, that is moving along the parallel track, we will be reaching to our destination, that is position B, because the destination is exactly on the limiting latitude. Now let's complete the diagram. Let's mark off the meridian of vertex 1 also.
So you can see the meridian of vertex 1 marked on the plot. PV1 is the meridian of our vertex. So green color track is the GC track passing from position A and having its vertex at limiting latitude. The red color track V1B is the rumb line track from the vertex 1, which takes us to our final position B. So we have the diagram completed on the screen now. Now in this diagram, we now have two triangles being formed. In a basic composite sailing problem, we saw there were three triangles which were being formed. But in this case, there are only two triangles which are being formed. And out of these two, one of the triangles is a spherical triangle. The two triangles being formed are PAV1 and the second one is PBV1. And out of them, the spherical triangle is the PAV1 triangle. So it's a spherical triangle, and not only that, it's a special spherical triangle because we have a right angle at vertex 1. At vertex, the great circle track runs in east-west direction, that is 090270 direction, and it is at right angles to the meridian, which runs in the north-south direction. So angle V1 here is a right angle, and triangle PAV1 is a spherical triangle. So the PAV1 triangle is checked. This is the spherical triangle which we have. The second triangle, Papa Bravo Victor 1, PBV1, is not a spherical triangle because the side BV1 is not a great circle. It's a small circle. All parallels of latitude other than the equator are small circles. So the limiting latitude which we have as side BV1 is a small circle. So that tells us that this triangle is not a spherical triangle. So now we have identified the spherical triangle. Let's see how do we solve it. The solution is quite similar to the one which we had done earlier. We will first solve the spherical triangle PAV1 using the Napier's rule. Now Napier's rule is that using the Napier's rule, we can solve the triangle PAV1. The Napier rule says that in a right angle triangle, if we know any two parts of the triangle other than the speciality, the 90-degree angle or 90-degree side, other than the 90-degree angle or 90-degree side, if any two parts of the triangle are known, using the Napier rule, we can find out any other missing part of the triangle. So let's identify the two known parts. The first part which is known to us is PA side. PA side is the colat of our starting position A, 90 minus latitude of A. The second part which is known to us in this triangle is side PV1. Side PV1 is the colat of our limiting latitude. The limiting latitude is given to us in these questions. So it is 90 minus limiting latitude. So with these two parts, we enter into the Napier's rule. And what do we find out? The first thing which we find out is angle P of this triangle. Angle P of triangle PAV1. Now this angle is the angle at the pole contained between the meridian of A and the meridian of vertex 1. So this gives us the D long between A and V1. Now as soon as we have this D long,
we can apply this d long to the longitude of A, which is our initial position. The lat long of initial position is provided to us. As you apply this d long to longitude of A, it gives you the longitude of the vertex 1. So angle P, as it is known, applied to the longitude of A gives us the longitude of vertex 1. Now, when we get the longitude of vertex 1, we are now able to easily calculate the rumb line distance, Bravo Victor 1 also. We have the longitude of vertex 1 known to us. We have the longitude of our destination position B, final position B. So we can calculate the d long between B and V1. So this d long is used in the parallel sailing formula to calculate the departure between B and V1, and it gives us the rumb line distance Bravo Victor 1 using parallel sailing. Coming back to the first triangle PAV1, now the next thing which we find is distance AV1. Again, entering into the Napier's rule using the known paths, we now find out distance AV1. This gives us the distance along our first leg, which is a GC track. So after we have found the GC track, the next item we again enter into Napier rule, and the next item which we find is angle A. So angle A is obtained next using Napier's rule, and this angle A helps us to find out our initial course. So angle A is used to find out our initial course, exactly like we did in normal great circle sailing questions, following the 1, 2, 3 method, 1, 2, 3 stepwise procedure. We have distance AV1, we have distance BV1. Adding them gives us the total composite distance between A to B, and initial course has been obtained using angle A already. So this gives us all the required items for this typical problem. Important thing to remember here is you have to make the diagram, and out of the two triangles, first identify which is the spherical triangle. Any one of them could be the spherical triangle, depending upon to which place the limiting latitude coincides. So once you have the spherical triangle, then first thing which we find is the longitude of the vertex. Once the longitude of the vertex is known, everything else falls into place. We can calculate the rumb line distance, we can calculate the initial course, the GC track distance, and the question gets solved. So this was a typical problem which sometime appears in the exam, and the method how to tackle it. Now, having understood this kind of a question, we will now proceed ahead. Now, in composite sailing questions, you may sometimes get stuck with a challenge in the question, and you may not be able to find out how to proceed ahead in that case. Now, that challenge is, let's assume that you have solved the triangle PAV1 using the Napier's rule, and you have found out the longitude of the vertex, the V1. Now, when you find out the longitude of the vertex, there is a possibility that the vertex V1 may go outside the triangle PAB, Papa Alpha Bravo. So how will you come to know that? We have the initial position and the final position known to us. Both the longitudes are known to us. And we have calculated the longitude of the vertex V1 using the Napier's rule.
So when you compare the longitude of V1 with the longitude of your final position, it will immediately tell you whether V1 lies in between A and B or V1 lies outside A and B. Let's say, for example, if A's longitude was 30 degrees east and B's longitude was 70 degrees east, and you find out that the longitude of vertex 1 is 80 degrees east. Now, obviously, 80 degrees east has to be more eastwards of the destination. So, how to proceed ahead in this case, and what does this mean? If the vertex comes outside, that basically tells you that from your initial position, if you move on a track which has its vertex on the limiting latitude, you will be reaching at a place farther away from your destination position. So this simply means that if you follow a great circle track from A to B, then in no case the vertex is going to come in between A and B. The vertex will not be inside, the vertex is going to be outside. If the vertex is going to be outside, that tells us that while going from A to B, the vertex is outside. So while going from A to B, we will never be crossing the limiting latitude. You see, the vertex which we have found out has come outside the triangle. So this tells us that if you move within this triangle PAB, the vertex being outside, you are not going to cross the limiting latitude in any case. So if you get a solution like this, that the vertex is falling outside the triangle, then in that case, you have to simply write a remark. Since the vertex falls outside the triangle, it is clear from the working that if we move on a great circle track from A to B, we will never be crossing the limiting latitude. So composite sailing is not required here. And after writing this remark, you can make this PAB triangle again, and you can solve it using the great circle method, using the cosine formula, and you can find out the great circle distance. So in that case, composite sailing is not required at all. So going on a GC track, you will never cross the limiting latitude. So we follow the GC track from A to B and calculate the GC distance. However, we cannot do that in the beginning. So a doubt may come in your mind. Sir, we can make a PAB triangle and we can find angle A and angle B. And if any of those angles is obtuse, we know vertex lies outside, and then we can solve it using the GC method only. But that method is not recommended, because in the question, they have told you to follow a composite track. So our beginning should be assuming that composite sailing is relevant here. And we will make a triangle like this only in two parts. Papa Alpha Vector 1, the second part Papa Bravo Vector 1, showing a composite track. So we will start with this. However, while working out, if we realize that in this question, vertex coming outside and composite sailing is not relevant or not required, then we switch over to GC sailing and find out the GC distance. So fundamentally, start with composite and then switch over to GC if required. There is a second disadvantage of starting with GC. One is, if you initially start with the GC track and you calculate angle A and B, if both the angles are acute angles, then you will have to switch over to composite and you will be wasting some amount of time. Even if one of the angles becomes obtuse and you follow the GC solution, the examiner will have a doubt in his mind that how did you figure out before solving the question that in this particular question composite sailing was not relevant. Because if a limiting latitude is given in the question, it is
considered that you will be starting off with the composite sailing method. But if you straight away start with the GC method, the examiner will be clueless. How did you figure out that composite sailing was not relevant here? So a doubt in his mind may lead to deduction of marks. So start with composite, and if you realize later on that composite sailing is not relevant in this case, move on to GC. Now this could happen in normal composite questions also, where you have 3 triangles. Here we have only 2 triangles, but in case you have the 3rd triangle also, the normal questions which we did in composite sailing. Now in that case, how will you come to know if in a particular case composite sailing is not relevant? Now when you are solving a normal composite question having 2 vertices V1 and V2, and there are 3 triangles, PAV1, PBV2, and a non-spherical triangle in between, that is PV1, V2. So in that case, you need to calculate the middle angle P there. This middle angle P helps us to calculate the rump line distance between V1 and V2. So if in any of the questions, the middle angle P comes to be negative. Remember, in those questions, we were calculating the complete angle P, which was the D long between initial and final positions. Then we were calculating the smaller angle P of first triangle, PAV1, and the smaller angle P of the last triangle, PBV2. And we were subtracting these 2 small angles to get the middle angle P. So if in any of the questions you get a negative middle angle P, so that simply tells you that composite sailing is not relevant or not required in this case if you follow the GC track, direct GC track from the initial position A to final position B. You will never be crossing the limiting latitude at all. So once it is clear to you, you get a negative angle P, just write a remark there. Since the middle angle P is negative, it indicates that following a GC track from A to B, we are not going to cross the limiting latitude at all. So in this question, the composite sailing is not relevant, hence solving it using a normal GC sailing question. So you make the PAB triangle and find out the GC distance between them straight away. So these are the 2 out of ordinary kind of questions which may sometimes appear in the exam, though the frequency is very, very low. If the question says it's a composite sailing, 99% it would be a composite sailing question only. But now you know that if you get stuck like this, the vertex comes outside the triangle PAB in a 2 triangle case, the one like the one which we see on the screen, or the middle angle P comes negative in a normal composite question, you know that composite sailing is not relevant and you switch over to the GC sailing. So this is how we tackle the typical question. Now beta, सर बोलो बेटा. सर जैसे ये क्वेश्चंस आपने बताया, मैंने इन क्वेश्चंस को जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है ना कंपोजिट वाला, वैसे किए थे. मतलब बी पॉइंट मान के, तो जो सेम लैटिट्यूड था वो जैसे ट्रायंगल बनाया तो 90-90 कैंसिल हो गया, पर उसका एंगल तो आया नहीं, पर डिस्टेंस कुछ आया. तो वो डिस्टेंस प्लस जो शुरू वाले ट्रायंगल का डिस्टेंस था, ये दोनों ऐड करा तो आंसर तो सेम आ रहा था. वो प्रोसीजर गलत है क्या? हमें ऐसे ही करना है इसको? हाँ बेटा, हो सकता है डिस्टेंस आपका जो है वो करेक्ट आ जाए, बट आई वुड रिकमेंड यू फॉलो दिस मेथड ओनली. फर्स्ट फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स V1. नहीं सर, हाँ वर्टेक्स की दोनों में, जैसे जब लिमिटिंग लैटिट्यूड करते हैं तो एक तरफ अपन V डालते हैं, एक तरफ W डालते हैं, 2 ट्रायंगल बनाते हैं और दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में पैरेलल सेलिंग दिखा के वो करते हैं, आंसर निकालते हैं उसका, तीनों को ऐड करके. पर अगर जो लिमिटिंग लैटिट्यूड और एक जो अपने को पोजीशन दिया, अगर दोनों के लैटिट्यूड बराबर है तो हमने जो शुरू वाले ट्रायंगल में निकाला है और जो अपना लिमिटिंग लैटिट्यूड प्लस
पोजीशन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो टोटल डिस्टेंस ही तो आएगा। राइट, टोटल डिस्टेंस ही आएगा। मैं तुम्हारा तो डाउट बेटा उस समझा नहीं, मेथड, तुम मुझे समझाने की कोशिश करो दोबारा से। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने जो अभी ये जो 11 क्वेश्चन थे ना, ये 13 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे 13, पर ओके इसमें जैसे जो सेम लैटिट्यूड वाले थे ना, उसमें मैंने क्या किया सर कि उसके अंदर मैंने सेम लैटिट्यूड में ओनली थिंग आई हैड डन कि सेम बनाया, v लिखा, w लिखा, दोनों की वैल्यूज लिखी, माइनस करके लिमिटिंग लैटिट्यूड्स की तीनों का डिस्टेंस निकाला। जो ट्रायंगल के तीनों के आए, इसमें एक ट्रायंगल कैंसिल हो गया जो जिसका लैटिट्यूड सेम थे, ओके बाकी दो के डिस्टेंस आए, दोनों के एंगल भी, जैसे जिस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ इनिशियल कोर्स पूछा है, फाइनल कोर्स नहीं पूछा, तो ओके। वो सब वैसे आया, तो वो प्रोसीजर गलत है क्या, ये पूछना चाह रहा नहीं हूँ मैं। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जाम कंडीशंस में अगर तुम 3 ट्रायंगल बना दोगे वेयर 2 ट्रायंगल्स आर रिक्वायर्ड, द एग्जामिनर मे हाँ सर। टेक इट अदरवाइज। अच्छा नहीं सर, वो एक ट्रायंगल तो कैंसिल हो जाता है ना पूरा, जैसे दो लैटिट्यूड, वो 90 डिग्री 90 डिग्री जैसे नेपियर लॉ में जाता है, तो जैसे एक दो साइड्स 90 होती है तो वो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दैट्स ओके, कॉस 90 ओके की वैल्यू बेटा, 0 हो जाती है वैसे। दैट्स ओके, वो ट्रायंगल कैंसिल होता है, पर वो ट्रायंगल तुम्हारे दिमाग में कैंसिल होना चाहिए, आंसर शीट पे नहीं। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि अगर आंसर ठीक है शीट पे सर। कैंसिल हुआ फिर तो पेपर चेकर को दिख गया ना, फिर वो बोलेगा भाई इसको खुद पता नहीं चला पहले कि ये तीसरा ट्रायंगल कैंसिल हो रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके सर, ओके सर। So it should cancel in your mind or you try to make a rough diagram first. अगर आपको डायग्राम से पता चल जाए कि ये कैंसिल हो रहा है, then you make a final diagram having 2 triangles only. अगर आप इसमें थर्ड बना के उस पर क्रॉस मारोगे तो इट डज नॉट गिव ए गुड प्रेजेंटेशन। एग्जामिनर थिंक्स कि भाई बच्चे को पता नहीं चला कि थर्ड ट्रायंगल बनना नहीं था, उसने पहले गलती से बना दिया और फिर उसके बाद कैंसिल कर दिया। और सर इस मैं जस्ट जो बोलना चाह रहा था, ये तो थर्ड ट्रायंगल बना भी देते हैं, उसकी कैलकुलेशन दिखाते हैं कि जो डिस्टेंस आया वो 0 है, फॉर द एग्जांपल। हमने कंपोजिट सेलिंग की ही नहीं, फिर सिर्फ टोटल सेलिंग ही जीसी हो पाई है, तो भी तो वो वैसे शो हो सकता है। नो, नाउ वी आर कंफ्यूजिंग 2 क्वेश्चंस बेटा। अब आप जो क्वेश्चन की बात कर रहे हो वो वाला क्वेश्चन है जिसमें वर्टेक्स बाहर आ गया हाँ है ना। अब हाँ। इसमें तो बाद में आते सर हैं, वो फॉरगेट फोर्थ अबाउट दिस क्वेश्चन है सर, वो क्वेश्चन फोर्थ वेयर क्वेश्चन है वर्टेक्स जिसमें कम्स वर्टेक्स आउटसाइड, बाहर। उसको अभी के लिए होल्ड ऑन करो। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन में आ जाओ जहाँ पे लिमिटिंग लैटिट्यूड इनिशियल या फाइनल लैट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। उस ओके। केस में आप अपनी आंसर शीट में 2 ही ट्रायंगल बनाओ, तीसरी वाली अच्छा मत अच्छा। बनाओ। ठीक है। ओके, उसको एग्जामिनर को शो मत करो कि आपने तीसरी बनाई थी और फिर कट कर दी, डोंट शो इट टू हिम, बिकॉज देन ही विल से कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या वर्स स्टिल उसके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि भाई ये तीन तीन ट्रायंगल बना के सॉल्व करने वाला था, ये आगे पीछे से कहीं से देख लिया इसने कि 2 बननी और फिर ये तीसरा वाला काट दिया, सो दैट विल लीड टू ओके डिडक्शन ऑफ मार्क्स। ओके 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 ओके। ओके बेटा, ठीक है सर, ठीक। so, ठीक है वो सर। तो बात वहाँ ख़त्म हो गई। अब आते हैं हम्म। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जिनमें आपने ये 2 ट्रायंगल बनाई और 2 हम्म। ट्रायंगल बनाने के बाद आपको पता चला, पहले स्टेप में मैंने बताया वी हैव टू फाइंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स 1 लॉन्जिट्यूड। अब जैसे ही आपने वर्टेक्स 1 का लॉन्जिट्यूड निकाला, यू केम टू नो कि भाई वर्टेक्स 1 तो ट्रायंगल के बाहर आ रहा है। हाँ सो सर अब वर्टेक्स आपने 1 का लॉन्जिट्यूड हम लोग को पी से कैलकुलेट करेंगे ना, पी में जो इनिशियल पोजीशन का ये डाल के। यस बेटा, दैट्स राइट। ओके ओके, हाँ तो ठीक है सर सर। आपने ना स्टार्टिंग में पी निकाला था, एक तो ए बी इनिशियल और फाइनल पोजीशन का पी निकाला, फिर हमने वर्टेक्स का पी निकाला, पी हमारा बड़ा आया था, तभी लग गया पता कि वर्टेक्स इज समवेयर आउटसाइड। बिल्कुल सो सही है बेटा, वैसे भी कर सकते हो। सो आई दैट मीन्स तुम्हारा जो देन ब्रेवो पापा V1 देन वी एंगल है राइट वो अ नेगेटिव आ रिमार्क। राइट राइट सर, एग्जैक्टली। राइट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट मेथड बेटा, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर ये एंगल नेगेटिव आए एक सिंपल रिमार्क लिख दो, composite sailing not relevant here, hence solving it by GC. ओके सर, थैंक यू। Okay, so is it clear now बेटा? यस सर, यस सर, समझ में आ गया। बेसिकली जब भी नेगेटिव एंगल होगा या बाहर चला जाएगा
लिमिटिंग मतलब बेसिकली लिमिटिंग लैटिट्यूड्स है तो उसमें कंपोजिट शेलिंग लगेगी ही नहीं वैसे भी, अगर दो लिमिटिंग लैटिट्यूड सेम है तो। नहीं बेटा, तुम समझे नहीं। लिमिटिंग लैटिट्यूड अगर कोइंसाइड कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि जीसी लगे, ज़रूरी नहीं है कि कंपोजिट लगे। दैट द वर्टेक्स वन पोजीशन विल टेल अस। वर्टेक्स वन पोजीशन, अगर वर्टेक्स वन ए और बी के बीच में आ गया तो कंपोजिट होगी, और अगर वर्टेक्स वन ए और बी के बाहर चला गया तो जीसी होगी। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर अगर ये अपना मतलब वर्टेक्स पी ए बी के बीच पी जो एंगल है ए वी पी ट्रायंगल में जो पी वाला एंगल है वो ए पी बी वाले ट्रायंगल से अगर एंगल बड़ा आ जाएगा तो उसमें जीसी होगी, सीधी सीधी। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, दैट्स करेक्ट। सर बोलो बेटा। हाँ सर, ये जैसा फिगर अगर इनकेस वर्टेक्स बीच में आता है और अपना जैसे ये फिगर अगर ऐसा आता है तो इस केस में फिर फाइनल हम लोग सीधा 090 फिर डिक्लेयर करेंगे ना अपना जो भी कोर्स रहेगा। राइट बेटा, दैट्स राइट। अब जैसे इस केस में हमारा जो फाइनल कोर्स होगा दैट हैज़ टू बी 090, because when we are moving on the limiting latitude doing parallel sailing, we can only move in easterly or westerly direction. So course can be either 090 or 270. So you don't have to calculate it. You just have to check it from the diagram and write it down as your answer. Okay. Okay. सर एक सवाल और था। बोलो बेटा। अजीब सा था, मतलब इतने क्वेश्चंस कर लिए फिर पूछ रहा हूँ। ये जो अपन जो सेकंड एंगल निकालते हैं फाइनल कोर्स हमेशा, तो जो बी वाला एंगल होता है इससे अपन उसको माइनस करते हैं 180 में से विथ रेस्पेक्ट टू द पोल, या ऐड करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द पोल। हम इसको कभी भी मतलब ऐसे इस वाले वे में क्यों लेते हैं माइनस या प्लस में? हम इंटरनल एंगल को ही क्यों नहीं ले लेते कि ये उस डायरेक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बी एंगल आएगा नॉर्थ 60 वेस्ट, तो इसको हम यही सेम क्यों नहीं ले लेते? इसको हम ये क्यों लेते हैं कि साउथ ईस्ट 60? बेटा वो इसलिए है कि जब आप इनिशियल पोजीशन से चलना शुरू करते हो देन योर शिप इज हेडिंग इनटू द ट्रायंगल एंड मेकिंग द करेक्ट एंगल। पर जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो द शिप इज हेडिंग आउट ऑफ द ट्रायंगल, सो इनर एंगल डजंट इज नॉट रेलेवेंट टू आवर कोर्स। डिड यू गेट इट? ओके ठीक है, जस्ट ठीक है सर। पर सर पोल तो अपन ने सेम लिया है ना दोनों के लिए निकालने के लिए। Yeah, pole is the same, but what difference is there is the ship's head. At the initial position, the ship is heading into the triangle, and at the final position, the ship is heading outside the triangle. ठीक है सर, आ गया समझ में, वो हेड का अंतर है। ठीक, Right, that makes the difference. Okay, और बताओ बेटा, और doubts? सर बस एक सर क्वेश्चन नंबर 4 था सर, उसमें भी वर्टेक्स बाहर आ रहा था सर। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्टेक्स बाहर आ रहा है। इट्स सम सिमिलर टू दिस ना बेटा? सर हाँ उसमें सर, सिमिलर, सेम। राइट, सो बस फिर तो कहानी सीधी है, वर्टेक्स बाहर आया, हमने नहीं वहां सर, एक उसमें तो रिमार्क सीधा लिखा। क्वेश्चन में भी लिखा था कि फाइंड अ ग्रेट सर्कल ट्रैक, उसमें तो सीधा सीधा यही लिखा हुआ था उसमें तो क्वेश्चन सर में। एंगल ही बड़ा आ रहा था ना 90 के, तो उसी से हाँ पता चल रहा था कि बाहर आ हाँ, रहा उसमें तो सीधा सीधा ही लिखा हुआ था फाइंड अ ग्रेट सर्कल ट्रैक। बट उसमें सर मेरा पता नहीं वर्टेक्स का लैटिट्यूड नहीं ठीक आया है। था तो तो पुराने क्वेश्चन जैसे है उसमें मतलब ए और मतलब बी एंगल चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है, ऑब्ट्यूज है तो उस साइड वर्टेक्स है, बाहर की हाँ, साइड। बट मेरा वो उसमें बस वो लैटिट्यूड ठीक नहीं आ रहा था उसका वर्टेक्स का ना। ओके, यू कैन चेक द वर्किंग विद द सॉल्यूशन बेटा, पता चल हाँ जाएगा आंसर करेक्ट कहाँ मिस्टेक है। उसमें सर सॉल्यूशन में उन्होंने ना, जैसे ए और बी से जा रहे हैं सर हम वेस्टवर्ड साइड, ए टू बी वेस्टवर्ड जा रहे हैं, और ए के साइड आता है वर्टेक्स, तो सर वो इंटरनल एंगल ए लिया हुआ लाइक 96 डिग्री आया था। जब वो बाहर वाली कैलकुलेट करते हैं उसकी क्या कहते हैं पी ए वी ट्रायंगल लेते हैं तो एंगल ए उन्होंने -6.75 लिखा हुआ। ओके बेटा, लेट मी सी, मैं अभी ओपन अप एक करता ही हूँ। बात है, वो अगर जब 90 में से करेंगे 180 में से माइनस करेंगे तो एक ही बात है। यू आर टॉकिंग ऑफ सर नंबर एक चीज 4 और, ना? क्वेश्चन 4 में
सर क्वेश्चन 4 में मतलब ये था कि कोई भी हमें इंटरमीडिएट पोजीशन निकालनी है तो उससे पहले वर्टेक्स निकालना जरूरी है, इट्स कंपलसरी। एक मिनट, लेट मी ओपन अप क्वेश्चन नंबर 4, वील डिस्कस इट हियर, लेट अदर्स आल्सो सी। एक मिनट दो बेटा। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी सर। अपने तो केबीसी चालू है। कौन बनेगा नेविगेटर? सो दिस इज नंबर 4। क्या फाइंड चालू द है? find the initial course and distance on the GC track from here to here. Also find the latitude of the point where the great circle cuts the meridian 15 degrees west. Right बेटा, अब बताओ डाउट इसमें। हाँ सर, इसमें सर जो ट्रायंगल है ना, PAV लिखा है जो बाहर वाली, राइट सर इन्होंने नेक्स्ट पेज पे ना सर इसको ये ट्रायंगल ली है PAV वाली, और एंगल A की वैल्यू 6 डिग्री लिखी हुई है, -6 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू -6 लिख रखी है। ये देखो ना सर, 90 - A = 6.741। मतलब A तो अंदर वाला एंगल है ना, लेकिन मतलब ये तो जब उसने कैलकुलेट किया तो विद AB वाली की तरफ से एंगल आया ना वो। अगर मैं हाफ एंगल 180 भी लूँ, 180 से सर इसमें वो जो sin 90 - थीटा = cos थीटा वैसी वाली प्रॉपर्टी से इसने किया है, लेकिन एक अगर हम 180 - A करेंगे तो भी वैसे ही आएगा। ही इज कंसिडर्ड PAV ट्रायंगल। बाहर वाली, हाँ जी सर, PAV ट्रायंगल ली है इसने, राइट? या बाहर। PAV ट्रायंगल में जो एंगल A है that has to be 180 minus the हाँ initial angle A. हाँ जी सर, So initial angle A था 90, 96, हाँ जी सर, तो it has to be 180 minus 96 बेटा, 17 सॉरी 84 होना चाहिए ये। मैंने 6.74 लिखा है सर, बस वही पूछना था क्यों। 84, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि आपका एंगल A जो है ट्रायंगल का ओ हाँ सर, ठीक है सर, वो हाँ 84 हो गया ना हाँ, बेटा। ठीक है सर, 84 हो गया, तो ठीक है, आपको पार्ट में चाहिए 90 माइनस A, तो हाँ ही इज हाँ, टेकन ठीक है 6 डिग्रीज, सर, दैट्स व्हाई, ओके, ठीक है सर, राइट? सर हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा, ओके ओके। और बताओ बेटा। सो ऑल क्वेश्चंस डन? नंबर 13 तक हो गए बेटा? यस सर, हाँ जी कर लिए सर, सर। ओके, बस अगर बेटा आपने ये 13 सवाल कर लिए तो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हो गया डन। नाउ यू कैन गो टू एनी पास्ट पेपर्स, you can pick up any question of your choice, number 4 question, and you should be able to do it. So अब नेविगेशन पेपर में और कुछ आए ना आए, चार्ट वर्क के 3 क्वेश्चन जो पार्ट ए में हैं और पार्ट बी का नंबर 4 क्वेश्चन, पहले 4 क्वेश्चन जो हैं ये हमारे डन है। आउट ऑफ 8 4 आर डन, तो 50% तो आ गया बेटा नंबर। सर वो काटेंगे भी तो सही, ऐसा थोड़ी है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं काटेंगे, 50 नंबर तो ओके, अब आगे उन्हीं का अरेंजमेंट करना है बेटा जो कटने हाँ वाले सर, नंबर है ना। वही बात है। ओके गुड। सो अब बेटा आगे जो मैं टॉपिक आपके साथ अभी कवर अप करने वाला हूँ, आई विल पिक अप सेलेस्टियल नेविगेशन नाउ। अभी तक हम टेरेस्ट्रियल नेविगेशन कर रहे थे, अब सेलेस्टियल नेविगेशन का टाइम आ गया है, एंड वी विल गेट होल्ड ऑफ ए रॉकेट एंड वी विल बी टेकिंग ऑफ टू द सेलेस्टियल स्फीयर नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो उसमें हम लोग सेलेस्टियल स्फीयर देखेंगे, जेनिथ देखेंगे, फिर वहाँ पे सिस्टम ऑफ रेफरेंसेस हैं, वी हैव द इक्विनॉक्शियल सिस्टम, वी हैव द हॉराइजन सिस्टम, उन दोनों को देखेंगे। और फिर एक फेमस ट्रायंगल है नेविगेशन में, वन फेमस ट्रायंगल इन द सेलेस्टियल नेविगेशन, दैट इज द PZX ट्रायंगल। सो वी विल अंडरस्टैंड द PZX ट्रायंगल नाउ। ये हमारा अगला बैटल ग्राउंड होने वाला है। सो वंस PZX इज अंडरस्टूड, फिर हम PZX पे बेस्ड जो अपने अगले टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करना शुरू कर देंगे। इट विल बी साइट सॉल्विंग, फैमिलराइजेशन विद द एल्मनैक, एंड 5 मेथड जो हमारे साइट सॉल्विंग के हैं, मरपास, लॉन्ग बाइक्रोन, इंटरसेप्ट, एक्स मेरिडियन, पोलारिस, इन मेथड्स को करेंगे।
देन PZX ट्रायंगल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, स्टार आइडेंटिफिकेशन, स्टार सूटेबल फॉर साइट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो अब बेटा एक है मेरी आपके साथ, आई वांट टू आस्क यू, ये जो सेलेस्टियल नेविगेशन का पोर्शन है, डू आई हैव ए सेशन विद यू टुमारो? नो, आई डोंट थिंक सो। सर आई थिंक एक क्लास है कल ना। Tomorrow, yeah, we have one class tomorrow. Second lecture I have with you guys. So you tell me now, ये जो celestial navigation वाला portion है, इसको आप लोग आज शुरू करना चाहते हो और shall we do it tomorrow? What do you guys say? सर जब आज ही आपको कर अच्छा दीजिए सर। Anyway, you guys like, tell me. tomorrow. सर जिसमें हमें आप सोच सको कि ज्यादा समझ में जल्दी आए, वो वाला वे। ओके बेटा, समझा तो मैं दूंगा ही वो तो किसी भी टाइम पे बोलोगे तो मैं समझा तो दूंगा ही सर आज ही स्टार्ट कर दीजिए। Okay, so let's take a break, then we can start little bit today. नहीं सर, थोड़ा करते हैं ना आज। Okay, so कल ही कर लो सर, फिर थोड़ा थोड़ा सर, आधा अधूरा कल ही कर लो सर, फिर कल ही करेंगे सर। ठीक है सर, कल ही करते हैं। सर कल करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है सर एक और चीज था, मतलब बोलो। सर आप थोड़ा अगर जल्दी कंप्लीट कर देंगे तो ड्राफ्ट सर्वे समझा देंगे क्या पूरा टॉपिक? ना बेटा, मैं नहीं समझाऊंगा मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि बेटा मुझे ना थोड़ा टॉपिक प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। नहीं वो तो ठीक है, मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा आज समझाओ, नवंबर से पहले कभी भी, मतलब ड्राफ्ट सर्वे नहीं बेटा, तो सर ये पेपर का विष्णु सर से समझ लेना। किससे? विष्णु सर से समझ लेना, वो समझा देंगे। ठीक है सर। ओके सर। सर वो समझाने से पहले बीच में 10 क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे इच्छा वैसी इच्छा मर जाती है कि खुद ही समझ लेंगे फिर तो। हाँ जी सर। बेटा फिर इतनी प्राइस तो पे करनी पड़ेगी ना सर। सर आप नेविगेशन ही करा दो सर, वही बहुत है। सर इंटरनल कभी होंगे सर कुछ डेट्स? ओके, इंटरनल के लिए अभी तो टाइम है बेटा। एग्जाम अब सर वो जो एक ग्रुप में एक आया था मैसेज एमएमडी एग्जाम का, वो डेट्स आई थी, उस पे कुछ है अपना लेने देना? एमएमडी एग्जाम्स की बेटा अभी तो डेट्स नहीं आई हैं कुछ भी। दिल्ली सर नवंबर वालों की आ गई ना, शायद नवंबर में है पेपर। असेसमेंट स्टार्ट हो रहा है ना सर, उनका असेसमेंट हो रहा है। नहीं बेटा, उन्होंने असेसमेंट तो बोल दिया है, बट दे हैव नॉट मेंशन्ड द ग्रेड। दे हैव जस्ट सेड कि डीजी शिपिंग वेबसाइट पे जो डेट शीट के अकॉर्डिंगली ग्रेड्स ओपन होंगे, दोज एग्जाम्स विल बी हेल्ड, बट डीजी शिपिंग पे अभी तक नोटिस आया नहीं है। अच्छा सर पर क्या लग रहा है एग्जाम्स हो जाएंगे जनवरी तक? नो आइडिया बेटा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नोटिस। कीप वाचिंग द डीजी साइट। यस सर। सर अपने एग्जाम बता दो सर, ईयर दिवाली के बाद ही होंगे ना अपने एग्जाम तो। ओके, अपने एग्जाम का कुछ आइडिया दे दो सर। दिवाली कब है बेटा? 4 को सर। 4 वो है 4th। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी रहने दो एग्जाम। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्स के बीच में छुट्टी तो नहीं चाहिए? दे दो सर, दे दो, छुट्टी दे दो। क्योंकि अगर सर, आप छुट्टी डेट मांगोगे बता एग्जाम दो। के बीच में या प्रेपरेटरी ऑफ हॉलीडे मांगोगे, फिर तो दिवाली से पहले शुरू हो जाएंगे। नहीं अच्छा सर। अगर कंटिन्यूसली रखना चाहते हो तो दिवाली के बाद हो सकते हैं। अब दिवाली की बात ही करो सर सर, खत्म कब होंगे सर? आनेंगे सुकून से। सर कंटिन्यूस ही कर दो। ओके, सो कंटिन्यूस के केस में मैं बताता हूँ आपको। सर मेन एग्जाम से पहले, मतलब जैसे नेविगेशन हो गया, स्टेबिलिटी, और इनसे पहले एक दिन का छुट्टी मिल जाएगा तो अच्छा है, फिर बाकी तो कर लेंगे। बेटा देखो, आप अपने एक हिसाब एग्जाम से बना लेना सर, यहाँ तो आप अपने हिसाब से बना लेना सर। डेट बता दो अप्रोक्सीमेटली कब से स्टार्ट होंगे, अगर छुट्टियों के साथ और विदाउट छुट्टियों के साथ। राइट छुट्टियों के साथ कब स्टार्ट होंगे सर, अप्रोक्सीमेट डेट?
देखो अगर छुट्टियां बीच में रखने चाहते हो फिर तो फर्स्ट या सेकंड से ही शुरू करने पड़ेंगे, 1 या 2 नवंबर, ओके। और अगर कंटिन्यूसली देना चाहते हो तो देन वी कैन हैव इट आफ्टर दिवाली 5 और 6 नवंबर। और सर खत्म फिर वही, अच्छा 12-13। खत्म जो है बेटा दे शुड फिनिश ऑफ बाय 11th और 12th। ओके, और सर उसके 13th बाद कुछ चेकिंग वगैरह कुछ टाइम तक? 13th इज आवर लास्ट डे। चेकिंग होती रहेगी बेटा, वो हमारा काम है, सो वी विल कीप ऑन चेकिंग एंड कीप ऑन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स। ठीक है सर तो सर। फिर ऐसे कर सकते हैं ना, एक एग्जाम दिवाली से पहले भी रख सकते हैं, दिवाली के बीच में 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी तो बाद उसके बाद कोई मेजर एग्जाम हो जाएगा। यस, कैन बी डन, यू हाँ कैन जी, हैव वन ऑन वैसे तो 3rd। ठीक बिकॉज 4 दिन थोड़ा ना दिवाली मनाएंगे, दिवाली तो 2 दिन ही मनानी है, उसके बाद है, फिर दिन मनानी। बाकी जो बचेगी सर रिजल्ट पे बन जाएगी दिवाली। राइट बेटा, so 13th is our clearance, 12th will be the day for your clearing stuff। 11th को बेटा हमें एग्जाम खत्म करने हैं, so you can prepare the date sheet and tell me। 5 एग्जाम है हमारे। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर। 11th को हमने एग्जाम्स को ख़त्म करना है। 12th is kept as a day for your completion formalities and if there are any repeaters, तो वो 12th के लिए 12th को रिजर्व्ड है। So 13th is the clearance day, that is the last day। So 11th finishing के साथ आप डेट शीट बना के मुझे दे सकते हो, I will follow that, no not an issue। हाँ सर। सर 5 को ट्यूसडे है, 9 को सैटरडे है, 10 का एक संडे आ जाएगा। बेटा कौन सा मंथ देख रहे हो? ओह सॉरी सर, कोई और ही देख रहा था। हाँ सर, फिर भी सर 5 को फ्राइडे है, 6 को सैटरडे है, 7 को छुट्टी आई जाएगी एक। या एग्जैक्टली। बस 4। सर फिर भी 2 छुट्टियां हो जाएंगी ना सर बीच में, फिर भी हो सकती हैं 1 2 3 4। हाँ 2 छुट्टियां सर फिर भी हो सकती हैं, 5 से भी 11 तक लेके जाना हो तो। What you guys do is you prepare a schedule basis completion on 11th and give me that schedule, discuss among yourself whatever schedule you want to make it and pass it on to me। सर ये एग्जाम सबको देने पड़ेंगे? हाँ बेटा, जिनको भी सर्टिफिकेट लेना है। सर फिर आंसर शीट भी मिल जाएगी, सर पेपर भी हम बना के दे दें। सर सब लोग पास हो जाते हैं ना? हाँ बेटा, अभी तक तो I haven't seen a guy who is not passed either in first attempt or in second attempt। ओके सर, फर्स्ट अटेम्प्ट इज ओके सर। ओके सर अगर जैन में एग्जाम्स होंगे इसके फेज 1 के, तो वी कैन स्टार्ट फेज 2 फ्रॉम दिसंबर बैच और नॉट, और या जैन बैच में लेना पड़ेगा सर? नहीं बेटा, आप इमीडिएटली फेज 2 शुरू कर सकते हो बिकॉज एंड अगर जो भी फिर वो लाइक एब्सेंट उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी ना 5 दिन का जो एग्जाम्स करेगा। दैट्स राइट। सो इफ यू डू फेज, बट ऐसे कर सकते हैं सर, फेज 2 में एनरोल होके फेज 1 के एग्जाम दे सकते हैं सर? यस यू कैन गिव, कर सकते हैं सर ये? सर ऐसा लग सर क्योंकि उसमें डेट्स चलती होती है ना, लाइक आपको उसमें भी टाइम आता है। अब इसको कर सकते हैं में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है, इज इट पॉसिबल लीगली? ओके, उसका आंसर है यस, लीगली ओके, राइट, यू कैन डू इट। ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर इज कि आप कम से कम 5 दिन की छुट्टी तो लोगे। हाँ जी सर। सो यू हैव टू टेक केयर दैट विद दिस 5 days लीव आपकी जो फेज 2 की अटेंडेंस है दैट डजंट सफर, बिकॉज आपकी फेज 2 में अबाउट 5 दिन की छुट्टी ही अलाउ होती है। आई थिंक 6 days लीव इज व्हाट इज अलाउड। सो पूरे कोर्स में आपके पास एक ही दिन और स्पेयर बचता है टू टेक एनी लीव। सो दैट इज़ वन थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ऐसा कर सकते हैं? दैट इज़ अप टू द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट बिकॉज इट विल बी टफ। नहीं सर, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो इट्स वेरी गुड, हम दिसंबर से चालू करके जनवरी में, क्योंकि ऑनलाइन ही चलेगा आई थिंक सो, अभी होने वाला नहीं है, तो इफ समथिंग इज लाइक दैट हो सकता है तो, क्योंकि हमें तो ऐसा था कि जैसे एग्जाम्स के साथ नहीं कर सकते, उसके बाद ही करना है या उससे पहले ही करना है।
बेटा मेरी आपको रिकमेंडेशन ये रहेगी, सी द एग्जामिनेशन शेड्यूल इज़ नॉट फिक्स्ड एज ऑफ नाउ, ओके। ये तो हर एक मंथ आपको पता चलेगा कि अगले मंथ में कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। सो आई वुड रिकमेंड दैट अगर आप फेज़ 2 करना चाहते हो अभी इन कंटिन्यूएशन, इट इज़ बेटर टू गो अहेड एंड स्टार्ट विद फेज़ 2। अगर फेज़ 1 के एग्ज़ाम हो जाते हैं नेक्स्ट मंथ में, सो देन यू अपीयर इन फेज़ 1 एग्ज़ाम टेकिंग दीज 5 days लीव। अगर नहीं होते हैं देन एज इट इज़ ओके, एटलीस्ट आपके दोनों कोर्सेज तो हो जाएंगे। दिस इज़ ए पर्सनल सजेशन, नॉट एनीथिंग बाइंडिंग ऑन यू। यू हैव टू चेक योर कैपेबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज इसको कंटिन्यूएशन में करने के लिए बेटा आप पे डबल लोड आएगा। वन इज़ यू विल बी स्टडिंग फेज़ 2, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ग्रास्पिंग दो सब्जेक्ट्स, 5 दिन ऑफ भी लोगे आप उसमें, and you will have to devote your time for phase 1 preparation also, क्योंकि phase 1 की preparation is not easy. You need to be geared up and well tuned for the exams. So you have to judge whether this can be done or not. Otherwise बेटा phase 2 में admission लेके फिर phase 1 एग्ज़ाम दिए और फिर उसमें फेल हो गए तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। फिर कोई फायदा नहीं। Then no use. Then it is better to give 1 month break, prepare well for phase 1 and then wholeheartedly go for phase 2. Okay. So now the exams are not going on in MMD? Exams are going on but their schedule is not fixed. जैसे पहले होता था कि हर एक 3 महीने बाद phase 1 के एग्जाम्स हो रहे हैं, now the schedule is not fixed बेटा. Every month I think maybe they are looking at the number of candidates passing or whatever, and basis that they are opening up the grades. So we don't know next month which grade they will be opening up. It will be second mates or masters or phase 1 or phase 2. We don't know. So in November you get to know about the December or January. Right, beta. Right. That's right. सर ये फेज़ 1 में अगर मतलब अगर रीअटेम्प्ट देना हो, मतलब ये फेल हो गए अगर हम इंटरनल में, तो नेक्स्ट मंथ होगा सर पेपर रिपीटर्स के लिए? जस्ट आस्किंग। For the college beta? Yes, for college. No beta, we will have it immediately afterwards. Maybe after the 13th in the next coming week जो होगा उसमें हम लोग इसको फिक्स अप करके कंप्लीट कर देंगे बेटा। ओके। Okay. More doubts? सर अगर अभी डेट्स नहीं आती हैं फेज़ 1 की या जनवरी में आती हैं, तो जैसे अगर मैं तो सोच रहा था ज्वाइन कर लूँगा, तो फिर तो सब भूल जाएगा सर फेज़ 1 का? हाँ बेटा, ज्वाइन कर दोबारा याद करना पड़ेगा। सर तो उस समय अगर डाउट होते हैं आने के बाद और कुछ अगर, तो फिर वो भी ऑनलाइन ही है, फिर क्या सीन रहेगा सर उसका? Okay. Beta, the WhatsApp group is not going to be dissolved, so WhatsApp group will stay there, right? And as far as my topic is concerned, navigation, whether it is Chartwork or CellNav, तो ये तो सारा आपको Marine Gurukul पे मिल जाएगा. Almost everything you will get on Marine Gurukul. Yes, all the videos are there. Second backup, जो अभी के videos हैं, class videos, you can keep those videos safely with you. Second backup. Third backup, जो हमारा WhatsApp group active है, put your doubt there and we will try to solve it. मुझे नहीं लगता इसके बाद fourth backup चाहिए होगा बेटा। नहीं सर, नहीं फोर्थ पे तो पास हो जाएंगे सर। ओके, और बताओ बेटा। सर फेज 2 कब से स्टार्ट होगा? Every 15th of every month. Starting every month on 15th. सर कॉलेज क्यों नहीं ओपन हो रहे हैं? मगर सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 15 जनवरी से भी कर सकते हैं सर तब तक। हाँ बेटा, you can. It is only a matter of 1 month. देखे आराम से कर लो सर, पता भी रहेगा पास हो रहे के फेल। Right, that's right बेटा, that's right. सर एक और डाउट था, लाइक सीनियर से पूछा था, दे सेट कि कार्गो का ओरल आप लाइक फेज 1 के बाद दे सकते हो या नहीं सर? इज इट पॉसिबल? You can give it बेटा,
it is possible because cargo doesn't have any component in phase 2. So cargo oral can be given after phase 1. Okay sir, thank you. Okay. सर मान लीजिए अगर हम पेज 2 की क्लासेस करते हैं, ज्वाइनिंग बीच में आ जाती है, अगर हमारे 5 या 1 हफ्ता रह जाता है तो वो आगे बैक करनी पड़ेगी क्लासेस या फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा कोर्स? I didn't get you बेटा, ask again. फेज 2 की मान लीजिए हम नवंबर बैच से स्टार्ट करते हैं क्लासेस एंड जैन में खत्म होगा, उस टाइम तक अगर ज्वाइनिंग आ जाती है, अगर मान लीजिए एंड मिड में, मतलब कि 2-4 दिन या 1 हफ्ते का मैक्सिमम आता है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है या दोबारा से कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम जब आएंगे? No solution beta, you will have to do it again. It gets washed out. Either you pass out or you don't pass out. Okay, the system doesn't allow you to keep the records for a long period of time. So once the candidate has done it, he has to be either passed or withdrawn from the batch. Okay. ओके बेटा, इंटरनल के लिए आंसर ये क्वेश्चन कुछ मिलेंगे सर प्रिपरेशन करने के लिए, ये पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा? बेटा नेविगेशन के लिए तो बिल्कुल मिलेंगे। जो मैंने असाइनमेंट दे रखी हैं उन असाइनमेंट्स को करना है आपने, लाइक वी हैव डन जीसी एंड कंपोजिट। जस्ट डू दीज असाइनमेंट्स एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल्स। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स का बाकी सब्जेक्ट के लोग बताएंगे। और सर ये बाकी इसमें जो बाकी स्टैगर्ड है उनकी भी तो दोगे भी असाइनमेंट करने के बाद? I'll give you. So we are going to start off with CellNav now. So CellNav जैसे ही हम शुरू करेंगे मैं आपको असाइनमेंट शुरू कर दूंगा देनी। So अपने एल्मनैक्स निकाल के रख लो, get the calculators, almanac ready. So मैं असाइनमेंट आपको देता जाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और सर हमें कुछ इसमें खुद की इंडोर्स फाइल में कुछ करना है या सिर्फ जैसे नवंबर में कंप्लीट होगा और आप हमारी फाइल असेसमेंट के लिए भेज देंगे? कौन सी फाइल में बेटा? सर एग्जाम देने के लिए एमएमडी में। राइट। तो हमें हमारे इसमें जैसे सेकंड बैच में अपडेट करते थे ना, अपडेट करना पड़ेगा या डायरेक्ट वैसे ही हो जाएगा? किसको अपडेट करना पड़ेगा बेटा? सर इसका कहने का मतलब सर जैसे हम पहले पेपर देते थे तो हमारी फाइल एमएमडी में जाती थी थ्रू द इंस्टीट्यूट, राइट सर? अभी जैसे पेपर नहीं हो रहे, अभी लेट्स से जनवरी में पेपर हो रहे हैं, एज वी विल पास आउट फ्रॉम एआरआई, तो दिसंबर में एआरआई को हमारी जो सी फेयर प्रोफाइल होती है जो डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे, उसको अपडेट करके लाइक इंस्टीट्यूट को कुछ देना होगा कि वो आगे फॉरवर्ड करे, या हमें मतलब हम कर सकते हैं डायरेक्टली? बेटा जैसे आपने सेकंड मेड में फाइल बनाई थी बिल्कुल वैसी ही फाइल आप फेज 1 में बनाओगे। वो फाइल इंस्टीट्यूट में भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और एमएमडी को फॉरवर्ड कर देंगे। वो अगर दिल्ली एमएमडी में या इधर करना है तो ना? एनी एमएमडी सारे में आप भेज दोगे? पिछली बार की तरह नहीं कि मतलब बॉम्बे जाना है तो खुद जाओ, दिल्ली नोएडा हम भेज देंगे? नो, वी विल सेंड इट टू ऑल द एमएमडीज। अच्छा सर ठीक है, फिर तो हमें आपको हार्ड कॉपी कोरियर करना पड़ेगा पूरा? दैट्स राइट सर, आगे दे जाएंगे चंडीगढ़ सर, ठीक है सर। बट आजकल तो वो नहीं हो रहा ऑनलाइन जो अपलोड हो रहा है उनकी साइट पे जाके सब डॉक्यूमेंट्स? बेटा कॉलेजेस तो सारे ऑनलाइन हो गए, एमएमडी में अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है बेटा। दे आर स्टिल आस्किंग फॉर द फिजिकल फाइल। ओके सर, ओके 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 बेटा। और डाउट्स? Okay, so shall we call it a day for today then? We can start the CellNav tomorrow. Okay sir. Okay. ठीक है बेटा. So bye bye for now then. If you want, you can log off now. No, not an issue. Okay, thank you sir. Okay बेटा, thank you. Okay sir, thank you. थैंक यू। Thank you.